friends, welcome to Divakar Education Hub. I'm Neha Miglani. Today I'm just going to represent the topic of classification of research and also the problem faced by researcher while doing the research. So let's start our topic. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Vagar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Vagar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. So, there are four to five types of three types of classification of research, that are the library research, field research, and then laboratory research. So what is library research? Library research is that research which is done in the library where answer to specific question or problem of the study are available. In short, when we do or conduct the research in the libraries and we get the solution on that particular place also, then it is called a library research. So, research which is conducted in the specific area in which you have also have the answer of that study are called library research. जैसे कि मैंने बताया था, कोई एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियोस में ली थी, लाइक कि भाई हमने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, while what are their number, what are their parents number, what are their classes, and what are their distance of the home from their school. ये सारी चीज़ें हमें लाइब्रेरी में अवेलेबल है, हम लाइब्रेरी में जाएंगे और वहीं पे आंसर गेट करेंगे. देन इट इज़ कॉल्ड ए लाइब्रेरी रिसर्च. Then come to the second type, that is field research. Field research is that research which is conducted in natural settings. फील्ड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जब हम एक नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई एक्सीडेंट अकर हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हमने रिसर्च की जाके कि वो एक्सीडेंट, वाई द थिंग्स हैज़ बीन हैपेंड, वाई द all this accident has been happened on that particular place, and what are the method to procure from the accident on that place. फिर इस रिसर्च को करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली वहाँ फील्ड पे जाएंगे, फील्ड वर्क कंडक्ट करेंगे, उस प्लेस का जो है वो ओवरव्यू लिया जाएगा और वहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वहाँ से ओवरव्यू लिया जाएगा कि वहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स अकर होते हैं, क्या उनको कारण लगते हैं, और अपनी कुछ स्टडीज़ करेंगे. सो देन इट इज़ कॉल्ड ए फील्ड research. When we do the research on that natural setting of that particular place in which we are going to conduct the research, then it is called a field research. Next, the third classification is the laboratory research. When, in short, इसमें ये चीज़ें आ जाती है, when we do the research for the experimental studies like जब हम कोई साइंस से रिलेटेड या कुछ केमिकल्स रिएक्शन से रिलेटेड या फिर कुछ मेडिसिन से रिलेटेड जो फिर स्टडी करती है, तो ऑब्वियसली वो स्टडी लेबॉर्ट्रीज में होती है. तो इस टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम लेबॉर्ट्री रिसर्च कहते हैं. सो व्हेन द रिसर्च इज़ कंडक्टेड इन आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड कंडीशंस, एक ऐसी आर्टिफिशियल मैनर्स में, ऑब्वियसली जब हम कोई दवाई का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे और उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे. सो देन इट इज़ कॉल्ड ए laboratory research. So that research is a study in a thoroughly specified and occupied area.
इक्विप्ड एरिया, जब हम ऐसे स्टडी जहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, सब चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल वे से उसको कंडक्ट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड लेबॉरेटरी रिसर्च। सो इन तीनों टाइप्स में जो क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसर्च में हमने क्या स्टडी किया है, जब हम कुछ नेचुरल वे से कुछ रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, कुछ नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, कोई जैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल जैसे आ जाता है, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द कस्टमर्स आ जाता है, या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आ जाता है, या फिर कुछ मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक्स की आ जाता है, या फिर बैंक्स का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें जो रिसर्च होती है तो वो ऑब्वियसली वो फील्ड में जाके होंगी। सो देन इट इज़ कॉल्ड ए फील्ड रिसर्च। और जब कुछ हम साइंस भी से रिलेटेड या कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीके से रिलेटेड जब हम कोई स्टडी को कंडक्ट करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द लेबॉरेटरी रिसर्च। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन, दिस आर नॉट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च जो होती है वो अलग तरीके की रिसर्च होती है, बट ये जो होती है क्लासिफिकेशन होती हैं। बेसिकली 3 तरीके की क्लासिफिकेशन ही फॉलो की जाती है एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। जब हम कुछ हिस्टोरिकल रिलेटेड स्टडी करते हैं, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, देन इट इज़ कम टू द लाइब्रेरी रिसर्च। जब हम कुछ फील्ड में जाके स्टडी करते हैं तो फील्ड रिसर्च, और जब हम कुछ लेबॉरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द लेबॉरेटरी रिसर्च। तो दिस आर द क्लासिफिकेशंस। नाउ कम टू द व्हाट आर द वेरिएबल्स, जो मैंने पीछे अपनी लाइव वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया है और प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज ए पैरामीटर दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरिंग अमाउंट्स ऑफ टाइप्स। ऑब्वियसली वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक ऐसे कंट्रोल्स कंडीशंस होती हैं और एक ऐसे पैरामीटर्स सेट किए गए होते हैं जो कि एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाउंट्स को हमें क्लासिफाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक हो, वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं बेसिकली 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट वी हैव ऑल द 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आल्सो, दैट आर द कंट्रोल्ड वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, मॉडरेटर वेरिएबल्स. So firstly we are going to discuss the what is the independent variable. So this is the stimulus variable. Stimulus मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक दूसरे को प्रेरित कर रहा है, ठीक है, मतलब जो एक और वेरिएबल को प्रेरित या स्टिमुलेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज़ चूजन बाय द रिसर्चर। एक रिसर्चर के थ्रू चूज किया जाता है टू डिटरमाइन इट्स रिलेशनशिप टू एन ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन, कि इसका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए कि दूसरे वेरिएबल के साथ इसका कैसा रिलेशन चल रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल्स आपके साथ ली हुई थी कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल एट द पब्लिक सेक्टर्स में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, तो वो कैसे चेक करेंगे? बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इंड्यूस स्टिमुलेट किया करेंगे हमारे कस्टमर्स को। वो कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं? ऑन द काउंटर सर्विसेज उनकी कैसी है, कैश देने की सर्विसेज उनकी कैसी है, एटीएम सर्विसेज उनकी कैसी है, और बैंकिंग नेट बैंकिंग की सर्विसेज कैसी है, मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज कैसी है, बाकी अदर जो पोस्टल सर्विसेज उनकी कैसी है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जितने भी हमने सर्विसेज काउंट की हैं ये सारी क्या आ जाती है? आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कस्टमर्स को किस हद तक अफेक्ट करते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं, तो उससे हम सेटिस्फेक्शन लेवल को जज कर सकते हैं। सो इन दैट केस व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, कस्टमर की जो बैंक की सर्विसेज होती हैं वो सारी क्या होती हैं? हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. Now come to the dependent variables. So what are the dependent variables? Dependent variables that in which the response variables, इनको हम कौन से वेरिएबल्स कहेंगे? रिस्पॉन्स वेरिएबल्स. रिस्पॉन्स मतलब कि उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं. सो विच इज़ ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, ये ऑब्जर्व किए जाते हैं एंड मेजर किए जाते हैं टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम इसके थ्रू ये डिटरमाइन वेरिएबल्स के थ्रू ये डिटरमाइन करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का अफेक्ट किस हद तक या किस लेवल तक आ रहा है. इट चेंजेस व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस, और ये तब चेंज हो जाते हैं जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज आता है.
जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले से ही ली हुई है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है ड्यू टू द विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो इसमें जो भी सर्विसेज हमने डिस्कस की है दैट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है? हमारे कस्टमर्स क्या है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं उन सर्विसेज को से रिलेटेड। तो उसके रिस्पॉन्सनेस कैसी है? विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जो हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज होता रहेगा अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंजेस आएंगे। सो दिस आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. Now come to the control variables. So what are the control variables? A variable controlled by the investigator in which the effect can be neutralized by eliminating or removing the variable. एक ऐसे वेरिएबल्स जो कंट्रोल्ड करते हैं दूसरे वेरिएबल्स को, उनको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल. सो इनका जो इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ता है उनको रिमूव करता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल. Now come to the intervening variables. A variable which interferes with the independent and dependent variables. कुछ ऐसे वेरिएबल जो कि इंटरफेयर करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में और उनके अफेक्ट को जो वो स्ट्रेंथन या वीकन करते हैं. जो अफेक्ट मतलब उनके उन वेरिएबल्स के आपस के रिलेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, या फिर उनको वीक करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कस्टमर सर्विसेज जो बैंक्स देती हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और कस्टमर्स है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. बट कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक टू द होम. बैंक का कितना डिस्टेंस है वहाँ और कस्टमर्स के घर से, तो एक ये इंटरवीनिंग वेरिएबल जो आ जाता है जो कि आपके अफेक्ट करता है. आप जितनी मर्जी अच्छी सर्विसेज दे दो बट अगर आपका बैंक आपसे दूर है, पब्लिक सेक्टर बैंक आपके होम टाउन से दूर है या आपके होम से दूर है, तो आप उनकी सर्विसेज को इग्नोर और ऑटोमेटिकली करोगे और उनकी सर्विसेज के थ्रू आप अफेक्ट या सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे. तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरवीनिंग वेरिएबल्स. ठीक है. Now come to the last variable that are the moderator variables. So this is the secondary or special type of independent variable chosen by the researcher to determine if the changes or modifies the relationship between the independent and dependent variables. इसके जो हमारे moderator variables कुछ ऐसे variables होते हैं जो कि researcher के थ्रू चूज़ किए जाते हैं इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि आपके वेरिएबल्स में कितना हद तक चेंज आता है, उनके रिलेशनशिप में किस लेवल तक चेंज आता है, जैसे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स में. तो उनको हम कौन से वेरिएबल कहते हैं? मॉडरेटर्स वेरिएबल्स. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल लेंगे मॉडरेटर वेरिएबल्स में, वही सेम एग्जांपल हम ले लेंगे जिसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं बैंक्स की सर्विसेज को और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हैं कस्टमर. इंटरवीनिंग वेरिएबल आ जाता है उसमें कि आपका डिस्टेंस कितना आ जाता है. तो मॉडरेटर वेरिएबल्स आ जाता है कि आपका जो है मॉडरेटर आ जाता है कि जो कि आपके उन दोनों के रिलेशन को अफेक्ट करता है. लाइक उनका जो है कॉम्पिटिटर बैंक कितना है, कस्टमर्स वहाँ के कितने हैं. तो वो अगर आपका कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट कर जाता है उस सेम मार्केट में तो उस एग्जिस्टेंस की वजह से आपके कस्टमर्स आपसे कितने सेटिस्फाइड होंगे, उनको हम कौन से वेरिएबल्स कहेंगे? मॉडरेटर्स वेरिएबल्स. नाउ कम टू द प्रॉब्लम्स इन रिसर्च. सो प्रॉब्लम्स इन रिसर्च, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको रिसर्च में फेस करनी पड़ती हैं. पहली प्रॉब्लम आपकी आ जाती है अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स जो है वो अनकंट्रोलेबल होते हैं. बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स, आप कुछ वेरिएबल्स को आप लेके चल सकते हो पर ज़रूरी नहीं है आप हर एक वेरिएबल को आप एज ए स्टडी के तौर पर यूज़ करो. तो ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल वही सेम एग्जाम्पल मैं आज लूँगी ताकि आपको और भी बेटर वे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल में आपके इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स में लाइक 2-4 मैंने वेरिएबल्स काउंट किए हैं. लाइक नेट बैंकिंग ले ली, उनकी मोबाइल बैंकिंग ले ली, एटीएम फैसिलिटी उनकी ले ली, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ ले ली, ठीक है, उनके लिमिट क्रेडिट लिमिट्स उनके ले लिए. मैंने बहुत सारे सिर्फ 4-5 वेरिएबल्स को कंसीडर करके मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया. बट इन वेरिएबल्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन लेवल को मेज़र करते हैं. लाइक उनके ऑन द काउंटर फैसिलिटीज़, मैनेजर का बिहेवियर, ठीक है, और स्टाफ कितना है और अदर थिंग्स.
बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपकी स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अनकंट्रोलेबल होते हैं, तो इनको सभी को कंसीडर में लेके आना एक नॉट पॉसिबल फॉर द रिसर्चर टू डू द रिसर्च। सो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल में कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम वाइल डूइंग द रिसर्च। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका ह्यूमन टेंडेंसी। ह्यूमन की टेंडेंसी कैसी है? ह्यूमन किसी तरीके से टेंडेंसी करता है, लाइक जैसे मैंने कस्टमर से क्वेश्चनियर करना है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आपके सारे क्वेश्चनियर्स आपके कस्टमर जो है आपको ट्रू वर्थी आंसर दे के चले, कुछ आपको फॉल्ट रीजन्स या फॉल्ट आपको आंसर भी दे देते हैं, जो कि आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम को करने के लिए बहुत एक ड्रॉबैक साबित हो जाता है। सो ह्यूमन टेंडेंसी भी आपकी स्टडी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइम एंड मनी। टाइम एंड मनी आपका ऑब्वियसली आप कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। एक स्टडी को कंडक्ट करने के लिए आपको 3 to 5 ईयर्स की टाइम पीरियड आपको ड्यूरेशन चाहिए होता है, ठीक है, तो आप कितना टाइम पीरियड लेके चलते हो, तो टाइम आपके हैंड में है कि नहीं है, सो ये भी आपकी स्टडी को अफेक्ट करेगा। और मनी ऑब्वियसली एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं हैं, सो आप उस तरीके से रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लैक ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कि ऑब्वियसली आजकल का ज़माना जो है वो कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है। अगर आपके जो है आप कंप्यूटर का यूज़ किए बिना आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करो, ये भी एक आपकी स्टडी के लिए लैक ऑफ साबित हो सकती है। नेक्स्ट इनसफिशेंट इंटरेक्शन बिटवीन यूनिवर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंटल एंड बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट। सो इंटरेक्शंस ऑब्वियसली बहुत इनसफिशेंट होता है जब आप एक रिसर्च को कंडक्ट करते हो। अगर आप एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च को लेकर चलते हो, या एक डिपार्टमेंटल रिसर्च को, या फिर एक बिजनेस स्टैब्लिशमेंट की रिसर्च को आप लेकर चलोगे, तो वो आपकी रिसर्च को अफेक्ट करेंगे। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस यूनिट टू गिव इंफॉर्मेशन। कई बार कस्टमर्स आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं ताकि आपकी रिसर्च को वो सही बता पाएँ। सो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक रिसर्च को कंडक्ट करने के टाइम पे आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडे टॉपिक इन विच आई हैव डिस्कस द वेरिएबल्स एंड इन विच आई हैव ऑल्सो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ research. So I hope you will all understand what are all these things. Now thank you so much.